of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about the pumping organ of the heart, and I have given you external features of human heart. Now, I will start our heart, that is the internal features of heart, how the blood circulate in human heart, and the special features of heart. In the previous class, I told you to make a square box containing two lines from the midpoints of the sides. Now, when you made the box within adjacent sides from joining the midpoints, you will see that four boxes will be created. Okay, now the left box will consider as left heart and the right box will consider as right heart. Clear? Now in the left heart you will see two partitions, that is the upper one and the lower one. In the right heart you can see two partitions, that is right upper heart and the lower heart. Now in the left heart you can see that two boxes. The upper one is known as left auricle and the lower one is known as left ventricle. Okay, now in the right heart, the same way you have right auricle, the upper one, and the right ventricle as a light as the lower one. Okay, now see the internal features of the human heart. Clear? And if you are unable to understand from these boxes, you have drawn the diagram of human heart. So open that diagram and understand from there only. Now the first one is your left pulmonary artery. Okay, then you have openings of left pulmonary artery, pulmonary veins, then left pulmonary veins in this diagram, left atrium, aortic semilunar valve, bicuspid valve, left ventricle, interventricular septum. Then from the starting you have aorta, supravena cava, right pulmonary artery, pulmonary aorta, right pulmonary veins, opening of superior vena cava, right atrium, opening of interior vena valve, right ventricle, tricuspid valves and inferior vena cava. Now we will start our how the blood circulate in the human body. Now you know that the lungs carry oxygen. From that you have in the previous sessions I told you that from pulmonary vein the oxygenated blood circulates from lungs to heart, and that heart is your left auricle. क्लियर? सो आपको यहाँ पे लेफ्ट पल्मनरी वेन्स दिख रही हैं. तो ये लेफ्ट पल्मनरी वेन्स क्या कर रही हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ छोड़ रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में छोड़ रही है. जो आपका फर्स्ट चैम्बर था हार्ट का लेफ्ट हार्ट में, दैट इज़ योर लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, नाउ लेफ्ट पल्मनरी वेन ने क्या किया कि ब्लड को लाके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके लेफ्ट आर्ट्रियम में छोड़ दिया. छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व दिख रहा है एंड बाइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है. ठीक है, अब सेमिल्यूनर वॉल्व क्या करता है, जैसे आपको ब्लड कम्प्लीटली फिल हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट हार्ट में, तो क्या होगा, वो वॉल्व प्रेशर से नीचे खुलेगी. तो ये वॉल्व क्या करेगा, प्रेशर से वॉल्व को खोलेगा. प्रेशर किसका, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो वॉल्व को नीचे खोलेगा. जैसे वॉल्व नीचे खुलेगी आपका ब्लड नीचे जाएगा. नीचे कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया. कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नौ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. देन अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा. क्लियर? सो बाइकस्पिड वॉल्व जो है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एक वेन आर्टरी जाएगी. वो आर्टरी पूरे बॉडी में अटैच है, मीन्स छोटी छोटी कैपिलरी फॉर्म में अटैच है. अब उससे ब्लड फ्लो करके पूरी बॉडी में यूज़ हो जाएगा. देन यूज़ होने के बाद कैपिलरीज के टाइम पे क्या होगा, ब्लड एक्सचेंज होगा. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लड बॉडी यूज़ कर लेगी, एंड यूज़ करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ होगा. डिफ्यूज़ होने के बाद इन्हें वेन्स लेके आएगी.
कौन लेके आएगी? वेन्स। आपको इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है ना। अब यहाँ से ब्लड आएगा, कौन से वाला? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से आया। आने के बाद क्या होगा आपका? ये राइट आर्टरियम में जाएगा। आपका कहाँ जाएगा? राइट आर्टरियम में जाएगा। राइट आर्टरियम में जाने के बाद वही ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया। जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया, फिल होने के बाद क्या होगा? हार्ट क्लोज था। जैसे ब्लड प्रॉपर्ली फिल होगा तो ये राइट आर्टरियम में आपको वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये वॉल्व क्या करेगी? नीचे की तरफ ओपन हो जाएगी। जैसे ये वॉल्व ओपन होगी आपका सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड वापस पल्मोनरी अरोटा की हेल्प से या पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, आप कुछ भी बोल लीजिए, पल्मोनरी अरोटा या पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये ब्लड आपका मेन आर्टरी के थ्रू, दैट इज अरोटा की हेल्प से कहाँ जाएगा? आपका लंग्स में जाएगा। लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा आपका? अल्टीमेटली लंग्स इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन ले लेगी एंड कार्बन को बॉडी के बाहर एक्सेल आउट कर देगी। दिस इज हाउ द हार्ट फंक्शंस इन पंपिंग द ब्लड टू द बॉडी। नाउ अब आप इसके पॉइंट्स देखेंगे। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। ये मैंने आपको बोला। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ अपर थिन वॉल आर्ट्रियम और ऑरिकल। अपर वाले पार्ट्स आपके आर्ट्रियम या ऑरिकल बोले गए थे एंड लोअर वाले पार्ट को हमने वेंट्रिकल बोला था। देन यू विल सी दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स। ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स एक्ट एज अ पंपिंग चैम्बर्स। वाई? ऑरिकल्स ने ब्लड कहाँ से रिसीव किया था? लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव किया था लंग से एंड राइट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव किया था आपका बॉडी से। That's why they are known as receiving chambers. But ventricles ने क्या किया था? लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया था? आपकी हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया था। कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट राइट ऑरिकल ने क्या किया था? वो लंग्स तक पहुंचाया था। सो वॉल ऑफ ऑरिकल इज थिनर बिकॉज दे हैव टू रिसीव द ब्लड। पतली है वॉल्स, उन्हें ब्लड रिसीव करना है। वाई वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिक because they have to pump the blood. Heart में basically 4 chambers है, left auricle, left ventricle, right auricle and right ventricle. Auricles are externally demarcated from ventricles by an irregular groove called corona sulcus. इस groove की वजह से दोनों अलग अलग separated है। Now the next one is that the ventricles are externally demarcated by oblique groove known as intraventricular सल्कस। ऑरिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोरोनरी सल्कस है एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस है। नाउ इंटरनली द टू ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंट्राऑरिकल सेप्टम व्हाइल द पार्टीशन बिटवीन वन पॉइंट इज लेफ्ट। एक जस्ट अ मिनट। हमारे पास ह्यूमन हार्ट में बेसिकली क्या होता है आपका? आपके पास एक सेप्टम होती है। जैसे हमने जब मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक बीच में मिड लाइन आई थी। दैट मिड लाइन इज योर सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम क्या करती है? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट करती है। सी द लास्ट पॉइंट। इंटरनली द टू ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंट्रा ऑरिकल सेप्टम while partition between two ventricles is known as इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। जब ऑरिकल सेपरेट किए जा रहे हैं तो इंट्राऑरिकल सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेपरेट किए जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। नाउ हाउ द ब्लड सर्कुलेट। नाउ क्लास जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको ब्लड की सर्कुलेशन समझा दी कि ब्लड हार्ट से कैसे सर्कुलेट किया जाता है। बट अगर अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हम ब्लड को सर्कुलेट करा रहे हैं लंग से हार्ट तक एंड हार्ट से बॉडी तक, so that's why it is known as double circulation. It is known as double circulation. तो जो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट आपको दिखाई जा रही है इस टाइम,
जो करंटली वीडियो पे स्क्रीन आ रही है आपकी, ये डबल सर्कुलेशन है आपका, जो ये बताता है कि एक बार लंग से ब्लड आ रहा है, देन लंग से ब्लड आ रहा है हार्ट में, एंड ये हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है बॉडी में। तो एक ही टाइम पे दो साइकिल्स इकट्ठे चल रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। नाउ यू कैन सी कि आपको ऊपर हेड दिखा रहा है, हेड वाले पोर्शन को आप भूल जाइए। नाउ लंग्स है, लंग्स के बाद पल्मनरी वेन शो कर रहा है, पल्मनरी वेन आपके हार्ट में दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम में कनेक्ट हो रही है, देन लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है हार्ट, देन उसके बाद आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो रही है वेन्स की आर्टरीज की हेल्प से, देन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड एक्सचेंज हो रहा है। ब्लड एक्सचेंज होने के बाद क्या हो रहा है, वेना कवा के थ्रू ब्लड वापस राइट आर्ट्रियम में आ रहा है एंड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, देन पल्मनरी आर्टरी शो कर रहे हैं एंड पल्मनरी आर्टरी से ब्लड वापस लंग्स में जा रहा है। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ लेफ्ट, अब मैं आपको समझा रही हूँ एक्चुअल में होता क्या है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल आपको पता चल गया कौन सा है ना। लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है कहाँ से, लंग से विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स, एंड राइट ऑरिकल रिसीव करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सुपीरियर वेना कावा एंड inferior vena cava respectively. Clear? This is what the left auricle receives and right auricle receives. Now the next one is that auricles are relaxed while receiving the blood. जब ऑरिकल्स ब्लड रिसीव करते हैं तो उनको रिलैक्स स्टेज में बोलते हैं, दैट मीन्स डायस्टोलिक कंडीशन। ओके, नेक्स्ट बोथ द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो वो सिस्टोलिक कंडीशन आ गई, तो ब्लड कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल से पास कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो ओपनिंग है जिसकी ओपनिंग को कौन गाइड कर रहा है, बाइकस्पिड वॉल्व हैविंग टू कस्प और फ्लैप्स। बेसिकली फ्लैप्स क्या होते हैं, विंग्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे प्रेशर से ब्लड आएगा वो फ्लैप्स नीचे की तरफ प्रेस हो जाएंगे एंड वो ब्लड को नीचे फ्लो कर देंगे। क्लियर है? नाउ देन यू विल हैव कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएगा बाइकस्पिड वॉल से, ये सारा आपको हर्ट में बता रहे कि हर्ट में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। नाउ सिमिलरली द ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल इज पास टू द राइट वेंट्रिकल, द ओपनिंग इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट ऑरिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और उसकी ओपनिंग कौन देगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व देगा। तो जब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स, देन बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो, मीन्स ऑरिकल्स में वापस ना जाए। So oxygenated blood from left ventricle is passed to the body by aorta, largest artery. Class मैंने आपको हार्ट में बताया था ना ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है हार्ट में, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट हाउ द ब्लड फ्लोज इन द हार्ट। ये सारा भी ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है आपका हार्ट में वो बता रहा है, अभी डबल सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। Now deoxygenated blood from right ventricle is passed to lungs for oxygenation by pulmonary aorta, which divides into left and right pulmonary artery. Then you will have an extended learning. Let's see. Just a minute, ये नहीं करते अभी हम। Now the special features, that is how the blood flows in a human heart. Now अब हम पढ़ते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या है ह्यूमन हार्ट के। द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। दोनों साइड्स ज़रूरी हैं, क्यों सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ओके, नाउ सच अ सप्लाई इज़ यूजफुल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यूजफुल है, which have to use energy constantly to maintain their body temperature like birds and mammals. अगर ब्लड मिक्स होगा तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सो द एनिमल्स विच डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लाइक एम्फीबियंस हैव 3 chambered heart and tolerate some mixing of oxygenated blood.
Now, the animals which do not use energy to maintain their body temperature. अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि हार्ट हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सो दैट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे 3 चैम्बर्ड है या 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं कि ब्लड मिक्स हो रहा है। एंड ब्लड मिक्स करने से क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल कम हो रहा है। एंड वहाँ पे जब एनर्जी लेवल कम होगा तो आपकी फंक्शनिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो वहाँ पे वो मिक्सिंग टॉलरेट कर जाते एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिशेस के बाद। तो जो ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है गिल्स के थ्रू एंड वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डायरेक्टली पास टू द बॉडी पार्ट्स। अब 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या है कि 2 अलग अलग चैम्बर्स बन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड रहेगा एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड रहता है, तो उससे वहाँ पे उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है। इन फिशेस ब्लड इज पास ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन वन सर्कुलेशन, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ब्लड एक ही बार हार्ट को पास होगा एक सर्कुलेशन में। जैसे हमारे पास क्या है कि हम लंग से भी हार्ट ब्लड रिसीव कर रहे थे, मतलब लंग से भी हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा था और बॉडी को भी दे रहा था, बट यहाँ पे फिशेस में वो चीज़ नहीं है। ओके, नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास टू हार्ट देन इट इज ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स। अब प्लस यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का पॉइंट आता है कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पास होता है हार्ट को, ठीक, देन वो ऑक्सीजन लेता है लंग्स को एंड कैरिड बैक अगेन टू हार्ट के पास हो जाता है। फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास टू द बॉडी पार्ट, दस ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल। ब्लड 2 बार फ्लो कर रहा है एक ही साइकिल में हार्ट पे। कैसे, पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के पास, देन हार्ट ने वो बॉडी को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइकिल्स में हार्ट में ब्लड ट्रैवल करे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब मैं बोलूँ कि बॉडी से हार्ट में जा रहा है ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड है एंड वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है, सो हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ that's all for today. Thank you and have a nice day. Please copy all the notes and diagrams, but do not draw any diagram of heart from this video. आप हर्ट का कोई भी डायग्राम इस वीडियो से नहीं बनाएंगे, आप एनसीईआरटी की बुक से हर्ट का डायग्राम बनाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।